امریکہ کی جانب سے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر بمباری کی مذمت کرتے ہوئے بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین نے کہا کہ اس اقدام کے بعد مسلم ممالک اسرائیل کی بالادستی سے نجات پانے کے لیے ایٹمی طاقت بننے پر غور کر سکتے ہیں۔ کلین مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اتوار کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت کی اور اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ امریکی بمباری کے بعد مشرق وسطیٰ کے کچھ عرب ممالک اسرائیل کی بالادستی کی وجہ سے جوہری ہتھیار بنانے کی جانب بڑھ سکتے ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے چیپٹر اور NPT کی خلاف ورزی ہے۔ یہ امریکی آئین کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ ملک کانگریس کی اجازت کے بغیر نہیں لڑ سکتا۔ صدر مجلس نے مزید کہا کہ امریکی نیشنل انٹیلیجنس چیف تلسی گیبٹ نے بھی اس سے پہلے کہا تھا کہ ایران میں کچھ بھی یعنی کہ جوہری ہتھیار نہیں ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ امریکہ غزہ میں ہونے والے قتل عام کو چھپا رہا ہے۔ صدر مجلس نے یہ کہا کہ مغربی ایشیا میں مکمل جنگ ہندوستان کے اقتصادی مفادات کے ساتھ ساتھ خطے میں رہنے والے 1,60,00,000 سے زیادہ ہندوستانیوں کو بھی بری طرح سے متاثر کر سکتی ہے۔ دیکھیے، جو آج صبح میں US نے ایران کے 3 یا 4 نیوکلیئر سائٹس پر جو اٹیک کیا ہے وہ انٹرنیشنل لاء کا وائلیشن ہے، یونائٹڈ نیشن چارٹر کا وائلیشن ہے، NPT کا وائلیشن ہے، اور خود یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو سمویدھان ہے، آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا وائلیشن ہے، کیونکہ ان کا سمویدھان آئین یہ کہتا ہے کہ بغیر ان کے کانگریشنل پرمیشن کے کوئی ان کا ملک، ان کا دیش جنگ نہیں کر سکتا۔ 5ویں بات یہ ہے کہ یہ حملہ کر کے یونائٹڈ اسٹیٹس نے غزہ میں جو فلسطینیوں کا ایتھنک کلینسنگ ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اس کو کور اپ کر رہے ہیں۔ اور اسرائیل جس کے پاس 700-800 نیوکلیئر وارہیڈ ہے، جو NPT کو سائن نہیں کیا، جو IAEA کے انسپیکٹرز کو الاؤ نہیں کرتا، اس پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ میری بات لکھ کے رکھ لیجئے کہ 5-10 سال میں ایران 90% یورینیم کا انریچمنٹ کرے گا، 90% کرے گا۔ نہیں روک سکتے ایران کو، اب ایران NPT سے نکل جائے گا اور انریچمنٹ کرے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ اثر ہوگا آج کی بامبنگ کے بعد کہ جتنے اس دیش میں، جتنے عرب ممالک بولیے، مسلم کنٹریز بولیے، جو اس خطے میں ہیں، وہ سب لوگ اب فیصلہ کریں کہ ہم کو اسرائیل کے بلیک میلنگ سے، اسرائیل کی ہیجمنی سے بچنے نرمل ضلع کے تنور منڈل میں ایک شخص پر لاٹھیوں سے اندھا دھند حملہ کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ ذرائع نے بتایا کہ نرمل ضلع کے تنور منڈل کے جبولا گاؤں کے رہنے والے سدھارم نامی شخص پر کچھ لوگوں نے لاٹھیوں سے حملہ کرتے ہوئے اسے شدید زخمی کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حالت نشہ میں سدھارم کی ایک شخص سے لڑائی ہوئی تھی، جس کے بعد اس شخص کے رشتہ داروں نے سدھارم پر لاٹھیوں اور پتھروں سے حملہ کیا۔ شدید زخمی سدھارم کو اس کے اہل خانہ نے بھینسا کے ایریا اسپتال منتقل کیا ہے۔ کلین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA کوثر محی الدین نے مختلف محلے جات کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان MLA کوثر محی الدین نے محکمہ بلدی، برقی اور آب رسانی کے عہدیداروں کے ہمراہ ندیم کالونی، جھانسی نگر، سالار برج، حکیم پیٹ اور اطراف و اکناف کا دورہ کرتے ہوئے باکس ڈرین، نالا، VDCC روڈ، اسٹریٹ لائٹ اور پارک کے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ عہدیداروں سے کاموں کی تکمیلی سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ اس دورے کے موقع پر ان کے ہمراہ کارپوریٹرز ہارون فرحان، وجیہ الزماں، مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین کے علاوہ سرگرم کارکنان بھی دیکھے گئے۔ BRS MLC داسوجی شرون نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا کہ وہ سابق وزیر ہریش راؤ کے ساتھ آبپاشی کے مسائل اور ندی کے پانی کے استعمال پر تبادلہ خیال کرے۔ ریاست تلنگانہ میں آبپاشی کے منصوبوں اور ندی کے پانی کی تقسیم کے معاملے نے ایک بار پھر سیاسی طوفان برپا کیا ہے۔ BRS کے MLC داسوجی شرون نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو
रियासत के अहम मसाइल पर साबिक वजीर हरीश राव के साथ बहस करने का चैलेंज दिया है। मीडिया से बात करते हुए बीआरएस रहनुमा ने मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साबिक वजीर हरीश राव के साथ आबपाशी के शोबे के मसाइल और नदी के पानी के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल करें। उन्होंने मशवरा दिया कि बंका चल्ला प्रोजेक्ट से बहने वाले पानी को पहले रोका जाना चाहिए और अगर जरूरत पड़ती है तो साबिक वजीर आला केसीआर का मशवरा और मदद लेना भी बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि हालांकि कांग्रेस हुकूमत को इख्तिदार में आए 18 माह हो चुके हैं, लेकिन पिछली बीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। उन्होंने पूछा है कि क्या चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को इसके अलावा कोई अहम काम नहीं है। दासोजी श्रावण ने सवाल किया है कि क्या केसीआर पर तनकीद करना जायज है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर तेलंगाना और उसके आबी हुकूक के लिए जद्दोजहद की थी। बीआरएस एमएलसी ने तजवीज़ पेश की है कि हुकूमत तामीली तनकीद को अपनाए और अवाम के मसाइल के हल पर तवज्जो दे। నేను రేవంత్ రెడ్డి గారికి మీడియా మిత్రుల ద్వారా నేను ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నా. అన్డౌటెడ్లీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మీరు కృతజ్ఞతగా ఉండాలా, రుణపడి ఉండాలా. ఎందుకంటే మీకు రాజకీయ భిక్ష పెట్టిండు కాబట్టి మీరు కృతజ్ఞత చూపెట్టండి. గురుతుల్యులు కాబట్టి నీ ఫామ్ హౌస్ లోనో నీ కొడంగల్లోనో గుడి కట్టి పొర్లు దండాలు పెట్టండి. రోజు మాకేం అభ్యంతరం లేదు. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కృతజ్ఞత తీర్చుకునేటువంటి ఒక ప్రక్రియలో భాగంగా కొడంగల్లోనో లేకపోతే ఇంకో మీ ఫామ్ హౌస్ లోనో ఏడనో దగ్గర గుడి కట్టి పొర్లు దండాలు పెట్టండి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, మాకేం అభ్యంతరం లేదు. కానీ తెలంగాణ ప్రజలకు చెందాల్సినటువంటి ఒక గోదావరి కృష్ణా జలాలను గురుదక్షిణ కింద నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కట్టబెడతా అంటే మాత్రం రేవంత్ రెడ్డి గారికి కర్రు గాల్చి వాత పెడతాం. దీంట్లో ఏ రకమైనటువంటి ఒక భేషజం ఉండవలసిన అవసరం లేదు. ప్రజల పక్షాన నిరంతరం పోరాడేటువంటి ఒక పార్టీగా, ప్రజల కోసం అనేక త్యాగాలకు సిద్ధపడ్డటువంటి ఒక కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో పనిచేస్తున్నట్టు ఒక సైనికులుగా రేవంత్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గురుదక్షిణ ఉంటే గుడి కట్టుకో, కానీ గోదావరి కృష్ణా జలాల జోలికి వస్తే మాత్రం నీకు కర్రు గాల్చి వాత పెడతామంటే విషయాన్ని నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. अलवाल पुलिस स्टेशन हुदूद में एक मखरूज नौजवान ने लॉज में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जराये ने बताया कि अलवाल मच्चा बोलारम के रहने वाले शानमुख ने 19 जून को अलवाल पुलिस स्टेशन हुदूद की एक लॉज में किराए पर कमरा हासिल किया था। होटल इंतजामिया ने गुज़िश्ता रात कमरे से बदबू आने पर पुलिस को इत्तला दी। बताया जाता है कि कर्ज के बोझ तले दबे नौजवान ने होटल में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अलवाल पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। मुमताज ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर एन दत्तात्रेयडू ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से गैर सगाली मुलाकात की। मुमताज ऑन्कोलॉजिस्ट और पद्मश्री डॉक्टर एन दत्तात्रेयडू ने इतवार को वजीर आला रेवंत रेड्डी की रिहाइश का वाक़िअ जुबली हिल्स पहुंचकर उनसे खैर सगाली मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने रियासती हुकूमत की तरफ से तालीम और शोबे तिब में तरक्की के लिए की जा रही पहल और कोशिशों को सराहा। डॉक्टर ने कहा कि वो रियासत में कैंसर की देखभाल के निज़ाम की तरक्की में हुकूमत के साथ हर तरह से ताउन करने को तैयार हैं। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद में सजावट के सामान के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। आतिशबाजी के नतीजे में लाखों रुपये मालियती अमलाक जलकर खाकसार हो गई। जराये ने बताया कि रंगारेड्डी जिले के पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके वादी मुस्तफ़ा में सजावट के सामान के एक गोदाम में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलने पर आतिशप्रो अमले ने फौरन मौके पर पहुंचकर अंदरून 15 मिनट आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है और न ही कोई जख्मी हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर व रुकन राज्यसभा आर कृष्णैया से मुलाकात की। के कविता और आर कृष्णैया ने 42% रिजर्वेशन की फराहमी का मुतालबा किया है।
भारत राष्ट्र समिति की MLC की कविता ने इतवार को BC वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर आर कृष्णैया की रिहाइश का पहुंचकर उनसे मुलाकात की। दोनों ने BC रिजर्वेशन की अहमियत, उसको नाफिज करने में हुकूमत की बेहिसी और मुस्तकबिल के लाहे-अमल पर तबादला ख्याल किया। आर कृष्णैया ने BC की तमाम तंजीमों और सियासी जमातों पर जोर दिया है कि वो रिजर्वेशन के हुसूल के लिए मुत्तहद हो जाएं। उनका कहना था कि रियासती हुकूमत का 42% रिजर्वेशन देने का कोई इरादा नहीं है। कृष्णैया ने BC बरादरी से ताल्लुक न रखने के बावजूद BC हुकूक के लिए जद्दोजहद करने पर के कविता की सताइश की। MLC के कविता ने आर कृष्णैया की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया और मुतालबा किया कि कांग्रेस हुकूमत अपने कामारेड्डी एलानिया को नाफिज करे और बल्दियाती इंतखाबात में 42% रिजर्वेशन की फराहमी को यकीनी बनाए। उनका कहना था कि अगरचे के एक जियो काफी हो सकता है, लेकिन रियासती हुकूमत ने कानून मंजूर किया और उसकी मंजूरी में ताखीर के लिए मरकज को मौरद इल्जाम ठहराकर BC रिजर्वेशन को मौखर करने का मंसूबा बना रही है। ये कविता ने जोर देते हुए कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमतों को कार्रवाई पर मजबूर करने का वाहिद तरीका अवामी एहतजाज ही है। आर कृष्णैया ने 17 जुलाई को मुनाकिद होने वाले रेल रोको एहतजाज की हिमायत का ऐलान किया है। शहर हैदराबाद के जामबाग में मौसम जाही मार्केट के करीब आग लगने का वाक़या पेश आया। खुशकिस्मती से किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। शहर हैदराबाद और मज़ाफ़ाती इलाक़ों में वक्फे से आतिशबाज़ी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। ताज़ा तरीन वाक़या जामबाग मौसम जाही मार्केट में पेश आया है, जहां पर एक खाली प्लॉट में आग लग गई। इत्तला मिलने पर आतिश फ़रो अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर तेजी से काबू पा लिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है और न ही कोई जख्मी हुआ है। आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो पाया है। पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात शुरू की है। टास्क सेंटर मुलुगु में तरबियत हासिल करने वाले 100 अफराद ने IT मुलाजिमतें हासिल की। मुलुगु जिले में बेरोजगार लड़के और लड़कियों के लिए एक रोजगार मेला मुनक्किद किया गया। टास्क के मुलुगु सेंटर में तरबियत हासिल करने वाले 100 अफराद ने IT मुलाजिमतें हासिल की हैं। जॉब मेले में रियासती वजीर सीता अक्का के अलावा जिला कलेक्टर ने भी शिरकत की। IT मुलाजिमतें हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि उनका शहर अब IT हब बन चुका है। उन्होंने IT हब की बुनियाद रखने पर टास्क, श्रेया इन्फोटेक और इन्फोसिस से इजहार तशक्कुर किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने अमरीकी हमले के बाद कहा कि सदर ट्रंप ने ईरान को धोखा दिया, अब तबाही की जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। अमरीका की जानिब से ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों के बाद ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने, जो इन दिनों तुर्किया के दौरे पर हैं, इस्तांबुल में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत करते हुए हमले को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा कि ट्रंप ने ईरान से धोखा किया, अब नताइज की जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। ईरानी वजीर खारजा ने मजीद कहा कि अमरीका के साथ बातचीत जारी थी तो इसराइल ने सिफारतकारी को उड़ाने का फैसला किया। उन्होंने इसराइल की तायद पर अमरीका को तनकीद का निशाना बनाया। अब्बास इराक्ची का कहना था कि झूठे इल्जामात लगाकर हमला किया जा रहा है। ईरान ने कुछ गलत नहीं किया। वो पिछले 20 सालों से ये साबित कर रहा है कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि ईरान हर किस्म की जारियत के खिलाफ खड़ा है और अमरीकी हमले के बाद उसे अपने दिफा का भरपूर हक हासिल है। वज़ीर ख़ारजा ईरान ने मजीद कहा कि अवाम के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमरीकी हमले के संगीन नताइज बरामद होंगे। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में खिलाफे काबा को तब्दील करने की तैयारियां जारी हैं। किस्वा को मस्जिद हरम ले जाने वाले ट्रक को भी तैयार किया जा रहा है। सऊदी अरब में खाने काबा का नया खिलाफ किस्वा तैयार कर लिया गया है, जो कि यक्को मुहर्रम को एक पुरवकार तकरीब में खाने काबा की जीनत बनेगा। खाने काबा की दीवारों और बाबे काबा को जिस कपड़े से ढका जाता है वो किस्वा कहलाता है। आपको बता दें कि खिलाफे काबा कई दहाइयों तक हर साल जुल्हज के महीने में तब्दील किया जाता रहा है, लेकिन सऊदी हुकूमत ने
साल 2022 में उस रिवायत को तब्दील कर दिया। अब किस्वा इस्लामी साल के आगाज पर यानी यक्कु मुहर्रम को तब्दील किया जाता है। किस्वा फैक्ट्री, जिसे दारुल किस्वा के नाम से भी जाना जाता है, वहां किस्वा तैयार होने के बाद उसे एक ट्रक के जरिए हरम शरीफ लाया जाता है। गिलाफ काबा की तैयारी के बाद किस्वा को हरम शरीफ लाने वाले ट्रक को भी तैयार किया जा रहा है। इस साल 26 या 27 जून को किस्वा तब्दील किया जाएगा। साबिक वजीर व सूर्यापेट के एमएलए जगदीश रेड्डी ने बंकाचर्ला प्रोजेक्ट की हिमायत करने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सूर्यापेट जिला हेडक्वार्टर में साफियों से बात करते हुए साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने बंकाचर्ला प्रोजेक्ट पर तबसरा करने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार पर शदीद नुक्ताचीनी की और कहा कि एक मरतबा फिर चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में तेलंगाना का इस्तेहसाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजशेखर रेड्डी ने माजी में कृष्णा को लूटने का काम किया था और आज चंद्रबाबू नायडू गोदावरी को लूट रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और तेलुगु देशम पर नुक्ताचीनी की और कहा कि दोनों पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने तेलंगाना को धोखा दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि आज गोदावरी का पानी लूटा जा रहा है। रेवंत रेड्डी रियासत के वजीर आला के ओहदे पर फायज हैं, लेकिन वो इस सिलसिले में कोई इक़दामात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीआरएस पार्टी और केसीआर इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे और तेलंगाना के पानी के इस्तेहसाल को रोकने के लिए तहरीक चलाई जाएगी। Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,